हाँ जी. If you can talk about the concept of weed, and then Navneet ji can also then. Because it's Navneet ji's two brainchild, so I think she can start. Ma'am will start and then I will tell about the journey, till here, and then we can have the question answers. Good afternoon, everyone. Thank you for being here. Well, weed, in a way, yes, it is my brainchild, but of course, only with the encouragement of Mr. Sahil Makkar from Punjab Angels Network. He's been really kind enough to guide me towards this. Of course, doing something for women empowerment was always somewhere in the back of the mind, but I think it takes shape when you collaborate with the right kind of people, with the right kind of knowledge. So I think he comes with the best of knowledge in the industry and in the ecosystem. So that's where it began. And weed, I think Sahil ji will be the best person to explain us more about the program. Yeah. So good morning, everyone. And so yes, so there was some. This is not on. Yeah. Good morning, everyone. So yeah, so I've been into this startup ecosystem as a Punjab Angels for a long time, but I used to always see there are less of women entrepreneurs and less of women investors too. So that's why it was always in my mind that there should be something happening for women too, because so women can keep. So I'm a CA by profession, and I've seen women can keep more better financial control than any person other than, because they know how to utilize that money effectively, efficiently. So that was always in my mind, and meeting ma'am, Navneet ma'am was like that thought and her thought. It's actually matching it up, and then we thought let's have a hand holding. We just had a brainstorming session for a few days. It was not just a one meeting; it was multiple meetings. What are the problem areas women actually face? Like after you see, after marriage, sometimes women has to have their child responsibilities or something, and they're left, and then they feel they're outdated now. But that hand holding is required. After they come out, they need someone who can say, okay, yes, you can do it. You have skills. I have seen my being CA friends, women friends who've been CA working at a big force and all, and then after marriage and after having the children, they have left everything. And they are very skilled people, and I just assume why after doing so much study they have left. And I thought let's hand hold them, because they should know how things are developing, how marketing happens, how product launch happens. Getting that first 100 customers is a difficult one, and then I think they can get everything. So with that in mind, we have developed a program. So that's a 1-year program, but it's 3 months of rigorous hand holding, and then 9 months of वो I always say कि किसी को जाके just daily पूछना, घर में आपको पूछता है ना आके कि भी खाना खा लिया, है ना? So there is someone who asks them कि are you doing okay, and every week we'll be asking them, are you okay or you need any support. So we'll be just helping them in their support, because after 3 months, once they know what is market research, once they know how to develop a product, how to do marketing, how to do sales, how to have those agreements in place, how to have those compliances in that, we have defined a course for 3 months, and then for 9 months we'll do a hand holding, taking them, launching them, so that after 1 year they are successful entrepreneurs. So that's the point in mind, and we'll be doing this not like everyone. We'll be doing this in batches of 10-10. Because if you have to give a quality, so that quality matters, and I think 10-10 batch would be a good one. 3 months 10 batch, then hand holding will go lifelong, but after 3 months we'll have another 10 women entrepreneurs, and similarly we'll have regular batches of 10-10 people. So that's in mind. Maybe anything you wish to add? I think that's about it. The idea is to not just have them start their businesses, but to scale it to another level, to have women who have their own legacies. I think that's what the idea is. We are starting now, and in times to come probably we'll have a lot of women within us who will be able to say that they have an empire of their own. So that's the thought behind it. If you don't mind, थोड़ा सा ना हिंदी में भी बोलिए, ताकि जो दर्शक हैं हमारे हिंदी देखने वाले, जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनको भी समझ आए. बिल्कुल सर. आप बोलेंगे मैं बोलूँ. नहीं आप ये स्टार्ट करें, आप शुरू करें. हिंदी वाला कैमरा कौन सा है? सभी हिंदी वाले. अच्छा सभी हिंदी वाले हैं. सुनील ने स्टार्ट हमारा इंग्लिश में करा दिया. ओके. I think Women's Day के इस अवसर पर
हमें बहुत ही अच्छा एक मौका मिला है कि हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इको डेवलपमेंट को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी यंग अच्छे नए एंटरप्रेन्योर्स, नए अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करने वाली लेडीज़ हैं, यंग लड़कियां हैं, जो भी कुछ नया सोच लेके आती हैं, हम उनको इनकरेजमेंट भी देंगे और साथ साथ में एक सपोर्ट भी होगा, मेंटरशिप होएगी एंड आगे आगे जाके उनको उस रास्ते पे लेके जाया जाएगा जहाँ पे वो अपने बिजनेसेस के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी आगे ले सकें एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने बिजनेसेस को बड़ा बना सकें। साहिल जी, एनीथिंग? सो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या, अभी आप देखो बिजनेस में बोला जाए ना अबाउट दिल्ली एनसीआर, बोला जाता है कि वो माइंडसेट नहीं है अल्टीमेटली। मतलब वी आर 15 साल 10 साल पीछे हैं बैंगलोर, मुंबई या यूएस और सम कंट्रीज एंड ऑल। द ओनली रीज़न इज़ वन, दैट इज़ माइंडसेट, है ना। क्यों? क्योंकि हम पंजाबीज आर ऑलवेज कॉल्ड दलेर, मतलब रिस्क टेकर्स, और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। तो वी आर ऑलवेज, जितने बड़े यूनिकॉर्न्स हैं वो पंजाबीज ही हैं, लेकिन वो इकोसिस्टम नहीं है। वो जाते हैं बैंगलोर में या जाते हैं कहीं और, वहाँ जाकर डेवलप। हम वो इकोसिस्टम यहीं पे क्रिएट करेंगे, यहीं से। वुमेन तो एक स्पेसिफिक है ही है ना, बट पॉइंट है कि वो इकोसिस्टम एज ए पंजाब एंजल्स ऑल्सो एज ए इकोसिस्टम, मेरा टारगेट यही है कि वो इकोसिस्टम के लोग यहाँ से बाहर ना जाएं, बल्कि लोग बाहर से यहाँ आए। तो उस इकोसिस्टम को डेवलप करने के, उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए तो हम ये बोलते हैं वी क्रिएट एलिजिबल एंटरप्रेन्योर्स एंड एलिजिबल इन्वेस्टर्स टू। यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स भी कई बार होते हैं, वो क्या है कि सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। उनको क्योंकि वो चीज़ समझ आ रही है, सामने दिख रही है, उनको बिजनेस समझ नहीं आता तो वो कहते हैं क्यों डालना, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसमें पैसा नहीं डालता। तो वो अवेयरनेस सेशंस भी हम काफ़ी करते हैं कि एक टर्म शीट क्या होती है, एक फाउंडर्स एग्रीमेंट क्या होता है, एक टैग अलॉन्ग क्लॉज क्या होता है ना, ड्रैग अलॉन्ग क्या होता है ना, क्या वैल्यूएशन होती है, कैसे कैसे स्टार्टअप के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या सेफ नोट होता है, कन्वर्टेबल नोट होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो इस वर्ल्ड में यूजर है, अब उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो कहता है जो चीज़ समझ नहीं आ रही मैंने क्या इन्वेस्ट करना। और देखो अर्ली स्टेज में लोकल इकोसिस्टम ना वही करता है। सबसे पहले कौन मदद करता है? वो पहले बड़ा भाई जो घर में है ना, जो अपने छोटे भाई को कहता है कि देख मैंने प्रॉब्लम झेली है, तुम मत झेलियो। मैंने 5 साल पहले आया था, 10 साल पहले थे प्रॉब्लम थी, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को तुझे सिखा रहा हूँ। तो वी आर बिकमिंग लाइक बड़ा भाई, है ना, कि भाई तुमने वो गलतियाँ नहीं करती हैं जो पुराने कर रहे थे, चेंज दैट माइंडसेट। कई बार हम कंफर्ट जोन में होते हैं, कई बार वो कहते हैं ना हमारी एस्पिरेशन क्या होती है, एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा ऑफिस। जिस दिन बन जाते हैं फिर हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम कहते हैं यार अब तो अच्छे से जी रहे हैं, अब मेरे को और इंडिया का टॉप क्यों बनना है, मेरे को वर्ल्ड का टॉप क्यों बनना है ना। सो उस चीज़ को, उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, वो दुनिया का सबसे बड़ा बनने के लिए, एस्पिरेशन थॉट को बड़ा करने के लिए ना, उस हैंड होल्डिंग के लिए हम हैं यहाँ पे, ताकि जहाँ पे फंसे। विद माई एक्सपीरियंस आई एम अ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एलुमनाई ऑल्सो, I am a CA by profession. I've been networked with international. We have a tie-up with Australia, with Canada, with Singapore, Dubai. We are partners all over there. We are getting those fundings into this region also. जो पंजाबी settled है वहाँ पे, they are much they want to invest into a region. वो एक पंजाबियत तो है ही है, लेकिन उनको क्या है कि उनको ये होता है कि किसके थ्रू करें, क्योंकि वो तो आ नहीं सकते। And I think being a professional thing and recognition, so they can be part of it. And they trust us कि yes you can manage your funds and you should invest in, and we want to invest in over here. किस टाइप के ट्रेनिंग और समथिंग वी आर प्रोवाइडिंग टू वुमेन? हाँ, so 3 महीने की ट्रेनिंग है। इसमें हमने क्या किया है कि 3 महीने ना एवरी मंथ 3 दिन आना है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ताकि रूटीन जॉब में छोड़ दो। 1 महीने पहले 3 दिन आना है, जिसमें सबसे पहले है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च का होता है, रिसर्च ना परसेप्शन बेस्ड होती है कि मुझे ऐसा लगता है, जबकि नहीं, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स जिनके थ्रू रिसर्च की जाती है। अब वो लोगों को ये नहीं पता कहाँ पे जाके, गूगल इज़ नॉट अ रिसर्च इन अ सेंस जो टेक्निकल होती है, गूगल इज़ अ कॉमन रिसर्च, लेकिन गूगल एज ए टेक्निकल बिजनेस के लिए रिसर्च नहीं होती है। ठीक है, मे बी गूगल में गूगल स्कॉलर होता है जो थोड़ी और एडवांस रिसर्च करता है, तो ऐसे ना टूल्स की नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहले तो रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद ये भी सब रिसर्च करना मेरी कौन टारगेट ऑडियंस है। कई बार हम मार्केट में बेचने तो चले गए, लेकिन आपको पता जैसे चंडीगढ़ में 7 सेक्टर 8 सेक्टर प्राइम मानने जाते हैं, 1-2 सेक्टर, फिर मिड सेक्टर आते हैं, ऐसे ऐसे चलता है। तो जिसे प्राइम प्रोडक्ट खोलना था 7-8 सेक्टर साइड खोलता है, जो मास प्रोडक्ट खोलना था उन साइड शॉप खोलता है। सिमिलरली क्या होता है कि मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि मेरी मार्केट क्या है। जब मार्केट अंडरस्टैंड कर ले तो उनको मार्केटिंग कि भाई अब ऐड इनको दिखानी है, अपनी एडवर्टीजमेंट इनको दिखानी है,
सो मार्केटिंग के बाद आता है सेल्स, कि जब कोई कह रहा है कि हाँ मेरा मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद आ गया पर क्या तुम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, तो वो सेल्स कैसे कि येस वी कैन डू मॉडिफिकेशन एंड ऑल। फिर एग्रीमेंट्स लीगल, कि कैसे एक एग्रीमेंट होता है, कैसे होता है, फिर टीम, HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेटवर्क रिसोर्सेज, एंड देन कम्स फाइनेंस। फाइनेंस इज ब्लड, सारी चीज़ों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन इट्स अ चिकन मिक्स स्टोरी, है ना, कि पहले अंडा आया था मुर्गी आया था, इन अ सेंस कि भाई पहले वो पैसा देने वाला कहता है पहले तुम सारी चीज़ें सेट कर लो तो मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है, और जो पैसे वाला कहता है वो कहता है तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं सारी चीज़ें सेट कर दूँ। बट यही है कि यही इसी रेस के अंदर जो मैनेज कर पाता है ना उसको पैसे मिल जाते हैं। और उसी तरीके से हम पहले 3 मंथ्स में उनको एलिजिबल बनाएंगे, फिर 3 मंथ्स के बाद उनको फंड रेजिंग करेंगे ताकि वो अगले 9 मंथ्स के लिए स्केल कर पाए, और उनको फिर वो हैंड होल्डिंग भी करेंगे। तो ये आप रीच आउट करेंगे उन तक या वो आप तक रीच आउट कर पा रहे हैं? चिकन लेग स्टोरी हम दोनों ही, वो हमें करेंगे हम उनको करेंगे। हम ये इवेंट है मे बी आपके थ्रू अगर हम एक मैसेज दे पाए ऑडियंस को, दे कैन अप्रोच अस। ऑब्वियसली थिंग्स आर, जितने भी हमारे पास वील बी रनिंग एप्लीकेशन फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, उसमें से हम एक प्रोसेस से ड्यू डिलीजेंस से हम मीटिंग करके, इन पर्सन मीटिंग करके उनसे देखेंगे हु कैन बी द पोटेंशियल 10 पीपल, तो उन 10 लोगों को हम सिलेक्ट करके फिर हम वो 3 मंथ्स एंड ऑल का प्रोग्राम रन करेंगे। सो एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? एक ही क्राइटेरिया होता है मैम, वो होता है फाउंडर, ठीक है, फाउंडर में कितना पैशन है उसको इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है, बाकी सारा तो दुनिया में काम कर लो, मिट्टी का काम कर लो, सोने का, पैसा सब में है, बट काम करना आना चाहिए। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। फिर आता है आइडिया, फाउंडर, क्योंकि जो आइडिया वो फाउंडर नहीं, तो मुझे बताओ 100 में से 99 पेटेंट ना फाइल में है मैम, तो यानी वो सारे 100 के 100 ना आइडियाज़ ही हैं। पॉइंट है एग्जीक्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे, तभी वो प्रॉफिटेबल होगा। अगर तो वी वांट टू मेक, वो कहते हैं ना जॉब गिवर्स, तो वुमेन एज ए जॉब गिवर्स, कि उनको देना जो एक माइंडसेट है ना जनरली कि अच्छा जनरली अब देखो क्या होता है कि हाँ स्कूल टीचर बन जाओ, बुटीक खोल लो, पार्लर खोल लो, सब चीज़ें वो ठीक है, लेकिन एक स्केल बिजनेस 100 लोगों की कंपनी, 1000 लोगों की कंपनी खोलना, सो दैट इज़ कि दे शुड बी जॉब गिवर नॉट एट अ स्मॉल लेवल बट एज ए मासेस। सो दैट्स, यही हमारा टारगेट है कि उनको हेल्प करें उस तरीके से। सो अगर हमें बताना हो कि आप तक कैसे रीच आउट करना है, किस तरीके से करेंगे? कोई लिंक होगा जिसके ज़रिए वो कैसे? या सो लिंक होगा, वील सेंड अ QR कोड, और मे बी punjabangelsnetwork.com की वेबसाइट है एक, हमने वैसे वेबसाइट बनाई थी, तो थोड़ा सा वो आई थिंक नाम करके थोड़ा सा उसमें अप्रूवल्स नहीं आ रही हैं, हमने थोड़ा सोचा लेट्स कीप अ वील नेम, बट आई थिंक वो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स के अगेंस्ट आया तो बनाया था, बट दैट लिंक हैज़ बीन अभी टेम्परेरी नॉट वर्किंग, तो दैट्स अंडर अप्रूवल, बट दे कैन अप्लाई थ्रू punjabangelsnetwork.com, वहाँ पे अप्लाई फॉर्म आता है, वेबसाइट पे जाएंगे, सो उसमें अप्लाई फॉर्म होगा, दे कैन अप्लाई एंड माई टीम विल रीच आउट टू देम। अभी अवेलेबल? हाँ, वो ऑलरेडी सालों से अवेलेबल है, मतलब दैट्स फॉर नॉर्मल एप्लीकेशंस, बट येस वुमेन के लिए भी हम उसी के अंदर अभी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन। ये 1 ईयर प्रोग्राम है आपका? ये 1 ईयर का है, लेकिन 3 मंथ्स रिग्रेस है और 9 मंथ्स हैंड होल्डिंग है। दैट्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ओनली। जब हम स्टार्टअप को करते थे ना, तो शुरू में क्या होता था, स्टार्टअप आता था मेरे पास तो रोज़ आता था, हफ्ते में 2-2 बारी भी आता था कि ये बता दो सर, ये बता दो, और जब वो सेट हो जाता था ना, अब मैं उसको फ़ोन करके पूछता हूँ कि कहीं फंसा है नहीं, तो अब नहीं वो आता, अब कहता अब तो चल रहा है मेरा काम, है ना, तो उसके बाद लेकिन फिर भी हमें पूछना होता है क्योंकि उनको नहीं पता होता, डे टू डे काम में बिजी हो जाता है वो, क्योंकि उसको नई चीज़ें अच्छी, लेकिन उसको ये भी समझाना होता है भाई ये नहीं करना, हमारा काम पता है क्या, ये बताना क्या करना है, नहीं वो तो खुद ढूंढ लेंगे क्या नहीं करना, क्योंकि तभी हम जो उनका 3 साल का रोड मैप है ना, जो उनका प्लान, उसको 1 साल में कर लेंगे। हमारे पास आने का मकसद यही होगा उसका कि जो 3 साल 5 साल लगाएगा काम को करने में, हम उसको हेल्प करके 1 साल में करेंगे। सो इसमें फाइनेंशियल हेल्प भी की जाएगी? फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी फॉर एलिजिबल पीपल। हम ये नहीं कह सकते हर एक को देंगे, वो तो आप चूज़ करेंगे, पहले 10 का चूज़ करेंगे, उनके 3 मंथ्स का प्रोग्राम करेंगे, फिर उनको पैसे देंगे। और ये कोई भी एज ग्रुप हो सकता है? यस, सो एज ग्रुप कैन बी एनीवन, दे शुड बी पैशनेट अबाउट इट, दैट्स इट। ऐसा क्यों होता है कि ऑलरेडी those are in business background, no, they are coming out for startup. Normally जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है, they have lots of thought and वो अचीव भी नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में क्या, you are looking for that बिजनेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपने क्या बोला, बिजनेस बैकग्राउंड? हाँ, कि वही आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। देखो आज की डेट में ना कॉलेजेस के अंदर ही बहुत सारे, आज 3 साल पहले पुरानी बात और थी, जब मैंने पंजाब एंजल्स ओपन, जब 3 साल पहले मैं आया था इसमें ना, तो कॉलेजेस में भी नहीं था,
लेकिन आप तो देखो, अब तो जितने भी कॉलेजेस हैं, टेक एनी कॉलेजेस, आईसर, ISB, थापर, CGC, लास्ट ईयर में सब में इंक्यूबेटर्स आ गए। वो कॉलेज भी अब ग्रास रूट पे जाने लगे कि एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे, दे आर कमिंग अप, लेकिन ना क्लैरिटी नहीं है। अब मैं आपसे किसी से पूछूंगा कि व्हाट डू डिफरेंस, क्या डिफरेंस है स्टार्टअप और एक MSME में, आपको पता है? सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। वो बिजनेस मॉडल तो वो भी है, लेकिन स्टार्टअप इज अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो अगर आपका बिजनेस स्केल कर सकता है, बड़ा हो सकता है, जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में बता रहा हूँ मैं, एज गवर्नमेंट डेफिनेशन जो कि DPIIT ने दी है स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसमें सिर्फ बाकी तो 2 बंदे होने चाहिए, कंपनी होनी चाहिए, वो तो कॉमन चीज़ें सब में है। द ओनली वर्ड डिफरेंशिएटर इज स्केलेबल। क्या आप बड़े बन सकते हो? क्या ऐसी चीज़ कुछ कर रहे हो, बड़े बन सकते हो? लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ टारगेट स्टार्टअप नहीं है, हम ये कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में भी फर्क है। एंटरप्रेन्योरशिप इज कमिंग अप विद न्यू थिंग्स और उसको लग जाता है, तो फिर हम कह रहे हैं कि चाहे वो अर्ली हो चाहे लेटर हो, दे नीड अ हैंड होल्डिंग। क्योंकि जब हम बड़े भाई को करेंगे, उसका छोटे को करेंगे, सब धीरे धीरे चेन बनती जाएगी। जरूरी नहीं कि वो आ रहे हो उनको हम उस तरीके से सपोर्ट करें, विल बी सपोर्टिंग एवरीवन। मैडम, हाउ यू विल अपील टू द वुमेन टू कम आउट फॉर द बिजनेस and what supports you provide them? Well, I think it is the need of the hour, and ladies आजकल हर फील्ड में, हर जगह पे बहुत अच्छा कर रही हैं। चाहे वो किसी दूसरी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है या फिर हमारी ही कंट्री में अलग अलग कंपनीज में लीड कर रही हैं। सो आई थिंक इट इज़ टाइम कि हर किसी को ये सोचना चाहिए कि अपने लिए आगे कैसे अच्छा करेंगे। बिकॉज जब एक लेडी अच्छा करती है तो उसकी पूरी फैमिली अच्छा करती है, वही उसके बच्चे भी फॉलो करेंगे आगे, उनकी जितनी भी जनरेशन्स होंगी। सी सोसाइटी के हिसाब से एक सिस्टम बना हुआ है दैट मेन हैव टू वर्क, उनको तो करना ही है, बट आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? सो आई थिंक now is the time when you need to set examples for your family. You have to become an example yourself. Ma'am, for the successful, you must have set the target. कितने लोगों को इस साल करना है? Have you have an idea regarding that? हाँ, so वही मैंने बोला, जैसे कि 10 के बैचेस विल 3 मंथ्स में 10 बैच लेंगे, उन पे हैंड होल्डिंग करेंगे, फिर 10 का बैच लेंगे, तो अराउंड 3 बैचेस, क्योंकि बीच में 1-2 महीने गैप भी रहेगा नई सिलेक्शन और प्रोसेस के लिए। सो अराउंड 3 बैचेस वी हैव अ टारगेट कि 1 साल में करेंगे हम। थैंक यू। मैम ऑल कैमरा फोकस कर, सामने रोल है। नहीं मैडम, इस तरह से आज वुमेन्स डे है, ओके मैडम, जिस तरह से आज वुमेन्स डे है, सबसे पहले तो वुमेन्स डे के ऊपर क्या कहना चाहिए? दूसरा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके बारे में बताइए, किस तरह से औरत को आप जिस तरह से कह रहे हैं कि रोजगार मुहैया कराना या ट्रेनिंग देना, उसके बारे में। जी नमस्कार, आज वुमेन्स डे के इस अवसर पर मैं सबसे पहले सभी आपके दर्शकों को विश करूँगी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एंड हम आज लॉन्च कर रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम डेवलपमेंट, जिसमें हम नए स्टार्टअप्स को, इन्वेस्टर्स को, मेंटर्स को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, जहाँ पे सब नेटवर्किंग भी होगी एंड नए यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक जगह मिलेगी जहाँ पे उनको सही गाइडेंस होगी। दैट इज़ व्हाट वुमेन इकोसिस्टम डेवलपमेंट इज़ अबाउट। किस तरह से मैडम हेल्प करेंगे और किस तरह से ये पता लग पाएगा कि संपर्क करेगी या दूसरी औरतें संपर्क करेंगी? गांव में भी ऐसे कई कंपनीज हैं जो काम करना चाहती हैं, बनाया हुआ है, लेकिन रोजगार में पिछड़ गए हैं, उनको किस तरह से हेल्प करेंगे? जी, संपर्क करने के लिए तो हमारे वेबसाइट्स हैं एंड बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब हैं, उससे हमें डेफिनेटली लोग कनेक्ट कर सकते हैं।
बट उसके आगे हमारा एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगा डिपेंडिंग ऑन कि उनके अपने स्टार्टअप में कितना इंटरेस्ट है, कैसे वो क्या सोचते हैं अपने बारे में। सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं लेके जाना। उसके हिसाब से हम हर 3 महीने के पे 10 लेडीज़ को सिलेक्ट करेंगे जिनको आगे ट्रेन किया जाएगा उनके पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। एंड देन जैसे जैसे वो अपने लिए रेडी होंगे अपने स्टार्टअप के लिए, 3 महीने बाद वो अपने आप आगे मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, अपनी मार्केट को समझना, उसकी स्टडी करेंगे एंड अपना डेवलप करेंगे स्टार्टअप। मैडम, जिस तरह से आप कोशिश है, एक शानदार कोशिश है, लेडीज यदि अपने पैरों पर खड़ी होती है तो कितना देखते हैं कि भारत जो है वो मेक इन इंडिया की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, आज के टाइम पे आई थिंक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मेक इन इंडिया नहीं है। एंड मैं बहुत प्राउडली ये चीज़ बोलती हूँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई ना कोई इंडियन कंपनी नहीं है। बी इट आप डिफेंस के कोई चीज़ हो या छोटे से छोटा कॉस्मेटिक हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में मेक इन इंडिया है। एंड I feel very very proud of that and in times to come I think जितनी ज़्यादा लेडीज़ होंगी उतना ज़्यादा इस चीज़ में आई थिंक लेडीज़ को स्पेशली मार्केट के बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। कंज्यूमर जैसे कि मानते हैं कि लेडीज़ तो बाहर जाएंगी तो शॉपिंग करके आएंगी, तो वो जो शॉपिंग की अंडरस्टैंडिंग लेडीज़ की है वही उनकी मैन्युफैक्चरिंग की भी बेटर होएगी बिकॉज वो मार्केट को समझते बेटर है। दैट इज़ द रीज़न लेडीज़ को बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए। आज की जिस तरह से पिछले 10 साल में काफ़ी चेंजिंग आई, आज आप महिलाओं को कहाँ देखती हैं, भारत की महिलाओं? दुनिया के हर सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे भारत की महिलाएं हैं एंड और यहाँ से आगे ही बढ़ती जाएंगी। हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमारे कंट्री में जिस चीज़ की हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, हम एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एंड आई थिंक आज के टाइम पे हमारी फैमिलीज़ हर कोई लड़कियों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि आई थिंक इन टाइम्स टू कम एटलीस्ट आप पिछले 10 साल से अभी 10 साल की बात कर रहे हैं, अगले 10 साल में तो वर्ल्ड टेक ओवर कर लेंगे इंडियन लेडीज़। थैंक यू। थैंक यू।